experience in IT, and especially if I talk about Okay. cloud. Excuse me, hello. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, yes. Okay, okay. So I have 13 plus years of experience in IT, and uh, if I talk about particularly cloud and DevOps technologies, then I'm working in cloud technology from past 8 plus years, and I have worked in like different companies like Orange, CSC, TCS, Rackspace, Nokia, and currently I'm with Ericsson Singapore. So currently I'm based out of Singapore, and here also I'm working as a solution architect. And since there is a telecom customer, so I'm supporting in private cloud, which is OpenStack. This is next level to this public cloud technologies, AWS, Azure, VMware, maybe GCP, right? I have work experience in both public and private cloud with DevOps technologies. That's it from my side. I think you can also let me know about yourself. What you do? I mean, are you student or maybe you are working somewhere and what's your profile? Yeah. So if I start with myself, I started working in HCL in 2011, and Okay. I did work there for around 5.5 years. Okay. After that, I quit that job for some government jobs preparation, Hmm. and somehow I could not crack that. So currently, I'm not working, and Okay. I now I again want to switch into IT. Okay. Fine. Dheeraj? So that's why I pursued this course. Okay. Okay. No issue. Yeah. धीरज, Yes, sir. I'm working in ICICI Bank. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Dheeraj, you are not audible. You are not हम्म. using headphones. हेलो हेलो धीरज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. सर, मैं कह रहा हूँ हेलो, अब आ हाँ रही है हाँ, सर? ठीक है, बोलिए. बोलिए बोलिए. नो, आई एम वर्किंग इन आईसीआईसी बैंक. ओके, आईसीआईसी बैंक. ओके, विच प्रोफाइल? सर, असिस्टेंट मैनेजर एएम. Okay, okay. So you have some IT knowledge, I mean, prior to this course? नो सर. Okay, no issue. This course is everyone for everyone. Even I have some batches who are the students only, and they don't have any work experience in any field. They are also learning AWS. So this is basically a startup course just to start your career or looking for career in cloud and DevOps now. This is the very first thing you need to learn, which is AWS Certified Solution Architect Associate. Okay, so this is the very first certification in AWS. उसके बाद there are more certifications on the higher level which you can go, but AWS के अंदर they have made like कि ऊपर वाला सर्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे लीस्ट जो नीचे वाला है उसका वो आपको पहले करना पड़ता है, and then you can appear for that also. Okay, so this is the first level, which is AWS Solution Architect Associate. Let me share my screen to you. Okay, मैं थोड़ा आपको brief intro देता हूँ. You guys can see my screen, right? यस सर. Okay. ठीक है. दिस कोर्स इज ऑल अबाउट AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, जो सबसे पहला लेवल है जिसके अंदर वी विल नीड, आई मीन वी विल लर्न AWS. ठीक है, AWS क्या है, क्यों बनाया, व्हाट इज देयर प्लेटफॉर्म, क्या उसके चार्जेस हैं, क्या सर्विसेज होस्टेड हैं, क्या क्या हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट. आज की क्लास जो रहती है जनरली विच इज क्लाउड बेसिक्स, जो मैं थ्योरी कंसेप्ट आपको बताऊंगा. देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ऑन AWS, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली सिर्फ AWS की ही बात करेंगे, उसकी सर्विसेज की बात करेंगे. आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि मैं AWS के ऊपर लास्ट 8-9 ईयर से काम कर रहा हूँ, राइट. आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंटरव्यू पैनल एज वेल, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज लिए हैं. ठीक है, सो आई नो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कंपनीज की आपसे. ठीक है, व्हाट दे नीड टू हैव यू, राइट, इन AWS. सो मैं आपको डेली सिनेरियोज आपको बताऊंगा हर सर्विसेज के बारे में कि कंपनीज के अंदर क्या होता है, किस लेवल पे होता है. इंटरव्यूज के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज के किसी सर्विस से रिलेटेड पर्टिकुलर. ठीक है, और रिज्यूमे बिल्डिंग में आपको करा सकता हूँ. आई हैव सम कंटेंट विच यू कैन पुट इन योर रिज्यूमे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स. उसके बाद आपको
स्लोली अपना इंक्रीज करना है इसको, विजिबिलिटी को फॉर AWS, सो दैट यू गेट मोर कॉल्स, एंड देन जितना ज़्यादा कॉल आपके पास आएगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके बनते हैं टू क्रैक एन इंटरव्यू इन AWS। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग कि व्हाट इज क्लाउड। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलर बात करेंगे AWS की। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंपेयर, पहले क्या था अब क्या है, राइट, क्लाउड के आने के बाद हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। देखो, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट दिस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम, चैलेंजिंग सर्टिफिकेट्स है, कोर्स विल बी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, बेसिक IT नॉलेज इज नेसेसरी, वी विल कवर ओवर 20 AWS सर्विसेज। ठीक है, कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे क्लाउड बेसिक्स, उसके बाद आई लेट यू नो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी कि AWS ने जो अपना क्लाउड बनाया है वो कैसे बनाया है, कहाँ कहाँ बनाया है, किस किस लोकेशन पे उन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाए हैं, एवरीथिंग। उसके कुछ टर्म्स हैं स्पेसिफिक जो AWS ने डिसाइड किए हैं, अपने डिफाइन किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, IAM is the first service which we gonna do in AWS, which is Identity and Access Management, जिसके अंदर हम यूजर्स बनाएंगे, ग्रुप्स, रोल्स, परमिशंस विद इन योर AWS अकाउंट। ठीक है, EC2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जहाँ पे हम सर्वर्स बनाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो, राइट, यू हैव टू क्रिएट वन सर्वर या वन VM आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर फिर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो एंड देन वो पब्लिश होती है। जैसे मान लो आपको अपनी खुद की ऐप या खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी है, देन उस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए। इट कैन बी ए डेस्कटॉप, इट कैन बी ए लैपटॉप, इट कैन बी ए सर्वर, इट कैन बी ए VM। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, फिर आपका कोड आप अपलोड करते हो, एंड देन योर वेबसाइट इज विजिबल टू ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ओवर वेब ब्राउजर। AMI है, AMI इज Amazon मशीन इमेज विच इज पार्ट ऑफ EC2 ओनली, एंड जहाँ पे हम कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी VMs को इजीली रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। EBS इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जहाँ पे हम वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम स्टोरेज की बात करेंगे, ब्लॉक स्टोरेज, जैसे जो आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। AWS CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे AWS ने अपना खुद का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एक और आई मीन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है, जस्ट लाइक GUI है आपका, ग्राफिकल यूजर, जहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू उसको मैनेज करेंगे। एक और बनाया है CLI, जहाँ पे कमांड्स के थ्रू आप कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ AWS ने अपनी खुद की कमांड्स बनाई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कमांड्स के थ्रू आप अपने पूरे AWS को मैनेज कर सकते हो, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज के अंदर GUI और CLI दोनों ही चलते हैं, इवन CLI ज्यादा चलता है, रीजन आगे बताऊंगा। S3 इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये भी एक स्टोरेज सर्विस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। कंपेयर टू EBS जो हार्ड ड्राइव्स हैं आपकी, S3 इज योर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो आप फोटोज अपलोड करते हो, गूगल ड्राइव आप यूज करते होगे, ड्रॉप बॉक्स यूज करते होगे, राइट। गूगल ड्राइव पे आप किस तरीके का डेटा रखते हो, आपकी फाइल्स, फोल्डर्स, वीडियोस, ऑडियोज, जो भी आप रखते हो, बैकअप, सर्टिफिकेट्स हो गए, IDs होगी, वटेवर जो भी है, इस तरीके के डेटा के लिए हम S3 यूज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। EBS, जैसे आपको लैपटॉप लेना है, विंडोज इंस्टॉल करते हो, आप विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते गूगल ड्राइव पे, राइट, उसके लिए यू नीड हार्डवेयर, यू नीड लैपटॉप, फॉर दैट वी नीड EBS। ELB is again one of the most important service, elastic load balancing, जहाँ पे हम load balancer create करेंगे, which will make your application highly available, जहाँ पे एक सर्वर मान लो बंद हो भी जाए तो भी आपका एप्लीकेशन चलता रहे, राइट। प्रोडक्शन के अंदर आप देखो, फ्लिपकार्ट है, Amazon है, Paytm है, कोई भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, दे आर नॉट रनिंग ऑन अ स्टैंड अलोन सर्वर। अगर वो स्टैंड अलोन सर्वर बंद हो जाए देन उनकी एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी। यू हैव नेवर सीन कि उनकी वेबसाइट डाउन हुई है, राइट, या स्लोनेस कभी आई है, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? दोज आर रनिंग देयर वेबसाइट्स अंडर दिस ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, और वहां पे 10 और 20 और 30 VMs आर वर्किंग पैरेलली। तो एक या दो या पांच सर्वर डाउन भी हो जाए तो बाकी के 20-25 सर्वर चल रहे हैं, वहां से आपकी वेबसाइट ऑलवेज रनिंग रहेगी, राइट। दिस इज द ओनली रीजन। ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड हाईली स्केलेबल टू योर एप्लीकेशन, जहां पे आपके सर्वर्स को ऑटोमेशन मिलता है। ऑटोमेशन इन द सेंस लाइक ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं या ऑटोमेशन बोलते हैं, लाइक ऑटोमेटिकली आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो दिस प्रोवाइड स्केलिंग। स्केलिंग होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा यूजिंग ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग एंड ELB बोथ आर वर्किंग टुगेदर, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन बन जाती है हाईली अवेलेबल एंड हाईली स्केलेबल। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस सर्टिफिकेशन ऑल्सो। इस सर्टिफिकेशन का असली मोटिव ही यही है, design and deploy your application in a highly available, in a highly scalable manner, जहां पे वो अवेलेबल भी होगी,
स्केलेबल भी होगी। तो ये दो सर्विसेज हम यूज करने वाले हैं। बट इन सर्विसेज के साथ साथ जो मैंने बाकी सर्विसेज आपको बताई हैं अभी तक, ये सर्विस भी साथ में काम करनी पड़ती हैं। वीपीसी इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पे हम नेटवर्किंग की बात करेंगे। इट्स अ नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर हम ओनली विल टॉक अबाउट नेटवर्क्स, राउटर्स, स्विचेस, लोड बैलेंसर्स और आपके इंटरनेट गेटवेज, नेट गेटवेज, ठीक है, सब नेटिंग, आईपी एड्रेसिंग, IPv4, IPv6, ये सब हम डिफाइन करेंगे। RDS इज योर डेटाबेस लेयर, जहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस सर्विस की बात करते हैं, जहाँ पे हम डेटाबेस की बात करेंगे। हर एप्लीकेशन के पीछे एक डेटाबेस काम करता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हो, राइट, उसके बाद आप लॉग इन करते हो, वो सारा डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होता है, ना कि एप्लीकेशन डेटा के अंदर। एप्लीकेशन डेटा इज डिफरेंट, डेटाबेस इज डिफरेंट, ठीक है। आपने एक रजिस्ट्रेशन किया, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, सब कुछ डाला, रजिस्टर किया, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब डाला, उसके बाद यू लॉग इन। अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सही पासवर्ड डालते हो, सही यूजर नेम डालते हो, विल बी लॉग इन। आओ, क्योंकि वो चीजें मैच हो रही हैं। जो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने टेक्स्ट बॉक्स में डाल के सबमिट पे क्लिक किया ना, वो जैसे ही सबमिट क्लिक किया, वो आपकी एंट्री मैच होगी डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सेव रहते हैं, दोनों मैच होंगे तभी वो लॉग इन करेगा, अदरवाइज यू विल सी एन एरर, ठीक है। क्लाउड वॉच इज योर मॉनिटरिंग टूल। जब तक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डिजाइन किया उसको मॉनिटर नहीं करोगे, उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। लेट्स सपोज एक सर्विस, एक आपने एप्लीकेशन चला दी, ठीक है, एक सर्वर डाउन हो गया, बट आपको पता ही नहीं चला सर्वर कब डाउन हुआ, देन सो क्लाउड वॉच के अंदर हम सारा का सारा मॉनिटरिंग अपना देखेंगे, ठीक है। हाउ वी आर गेटिंग अलार्म्स, हाउ वी आर क्रिएटिंग अलार्म्स, कैसे नोटिफिकेशंस आते हैं हमारे पास कि एक सर्वर डाउन हुआ है। SNS इज योर सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। आपने देखा होगा एप्लीकेशंस के अंदर आजकल आपको ईमेल्स आती हैं, एसएमएस आते हैं, ऐप की नोटिफिकेशंस आती हैं एंड एवरीथिंग। These all you can configure in SNS also. Route 53 is your DNS. I know, I'm not sure आपको DNS के बारे में आइडिया है। DNS is something like Amazon.in, Flipkart.com, Facebook.com. This is DNS नेम, ठीक है, जो कि ह्यूमन रिडेबल्स नेम होते हैं। बट एक्चुअल में ये जो वेबसाइट्स हैं पीछे किसी एक पब्लिक आईपी पे रन कर रही होती हैं। आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना इज नॉट सो इजी, तो उसके लिए हमने डीएनएस बनाया, ठीक है, सो दैट आपका आईपी टू होस्ट नेम रिजॉल्व हो जाए। होस्ट नेम होगा यहाँ पे आपका डोमेन नेम, जो GoDaddy से आप बाय करते हो, www.thisismywebsite.com, example.com, facebook.com, google.com, what is this? These are domain names. बैकएंड पे ये रिजॉल्व कर रही होती हैं किसी एक पब्लिक आईपी को, जहां पे वो चल रही है वेबसाइट, ठीक है। तो राउट 53 अंदर वो चीज देखेंगे हम। क्लाउड फॉर्मेशन एक ऑर्केस्ट्रेशन अगेन ऑटोमेशन टूल है, जहां पे हम जो डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, सर्वर बनाया, स्टोरेज बनाया, नेटवर्क बनाया, ठीक है। आप कैसे बनाओगे? या तो CLI में जाके कमांड रन करोगे, या GUI में जाके चीजें सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा, राइट। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्राम्स के थ्रू आप यही डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटेड करोगे, विच विल बी वेरी वेरी फास्ट और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती है, एररलेस होती है मोस्टली, क्योंकि जो आप कोड के अंदर लिखोगे वही बनेगा। एंड कोड के अंदर कोई सिंटैक्टिकल एरर है तो वो कोड आपका रन ही नहीं होगा, उससे पहले वो कंपाइल होता है, ठीक है। एंड कंपनीज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एवरी डिप्लॉयमेंट इज डन थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन, या थर्ड पार्टी टूल्स हैं। आई एम नॉट श्योर आपने सुना हो टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक थर्ड पार्टी टूल है, क्लाउड इंडिपेंडेंट है। क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ AWS में चलेगा, बट टेराफॉर्म किसी भी क्लाउड के लिए चलता है। अच्छा, थर्ड पार्टी टूल, एंड उसके लिए आपको AWS पे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। अपने टेराफॉर्म के ऊपर जाओ, लॉगिन करो टेराफॉर्म पे, एंड यू कैन गेट एनीथिंग। आप एक सेम प्रोग्राम से एक VM AWS में ही बना दोगे, एज्योर में ही बना दोगे, GCP में ही बना दोगे, एक ही प्रोग्राम से। इट्स लाइक टेराफॉर्म, दिस द पावर ऑफ दिस, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। बट दैट कम्स अंडर डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज। जरूरी नहीं है कि AWS के लिए आपको टेराफॉर्म आना जरूरी है, नहीं, बट यस, AWS के लिए आपको क्लाउड फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। DynamoDB अगेन इट्स एडवांस लेवल डेटाबेस, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड रहती हैं। आपको डेटाबेस का जो वर्कलोड है वो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फेसबुक रन्स ऑन DynamoDB, क्योंकि फेसबुक DynamoDB वहाँ यूज होता है जहाँ पे बहुत ही हैवी डेटाबेसेस होते हैं, साइज बहुत हैवी, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है। डेटाबेस का मतलब होता है दो चीजें, रीड या राइट। या तो आप रीड करोगे या राइट करोगे, या तो आप किसी साइट पे जाके रजिस्टर करोगे या लॉग इन करोगे। लॉग इन कर रहे हो तो रीड कर रहे हो,
रजिस्टर कर रहे हो तो राइट कर रहे हो, ठीक है, कोई ऑर्डर जनरेट कर रहे हो तो राइट कर रहे हो, ऑर्डर की हिस्ट्री चेक कर रहे हो तो रीड कर रहे हो आप, राइट। तो ये इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है, लेट्स सपोज फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप देखो अक्रॉस ग्लोब सारे रीजन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क है, ठीक है। फेसबुक को खुद नहीं पता किस टाइम कितना ट्रैफिक आएगा उसके पास, राइट, क्योंकि आप मान लो इंडिया के अंदर अभी मॉर्निंग है तो इंडिया वाले लगे हैं, बट यूएस में वहीं पे सब सो रहे हैं, तो यूएस का ट्रैफिक लो है उसका, राइट। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया वाले अभी सो रहे हैं, 4 घंटे बाद वो जगेंगे, तब तक इंडिया वाले काम पे लग जाएंगे, फिर यूएस वालों की मॉर्निंग हो जाएगी, फिर वहां से रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगी, राइट। पता ही नहीं है कब क्या ट्रेंड कर जाए, कौन सी कहाँ पे ज्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए, दे नेवर नो। उस केसेस के अंदर डायनेमो डीबी ही आपकी हेल्प करता है। वो क्यों करता है वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल आरडीएस और ये जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आरडीएस और डायनेमो डीबी का, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही डेटाबेस की सर्विसेज हैं। क्लाउड फ्रंट इज योर सीडीएन, जहाँ पे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन का। दीज ऑल फोर कंपनीज आर यूएस बेस्ड, ठीक है, इनके डेटा सेंटर यूएस में है, बट इनका आप यूजर्स देखो अक्रॉस ग्लोब है। तो कुछ यूजर यूएस से ही लॉग इन कर रहे हैं, राइट। तो जो उनका डिस्टेंस है रिक्वेस्ट का फ्रॉम योर मोबाइल टू देयर डेटा सेंटर, वो कितना कम है। यूएस में बैठ के आप वो एक्सेस कर रहा है, हो सकता है उसका जो डेटा सेंटर है वो उससे 100 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर है, वहीं पे एक बंदा इंडिया से बैठ के कर रहा है, डिस्टेंस इज 13,000 किलोमीटर। तो जो रिक्वेस्ट एक 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, टोटल 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, वही सेम रिक्वेस्ट अगर आप दिल्ली से बैठ के यूएस करते हो तो वो 26,000 है, राइट। तो डेफिनेटली आपको स्लोनेस मिलेगी ही मिलेगी विद द सेम स्पीड ऑफ नेटवर्क। वो भी 5G यूज कर रहे हैं, आप भी 5G यूज कर रहे हो, और डेटा सेंटर तो है ही कॉमन सबके लिए, वहां पे कोई ऐसा स्पीड का डिफरेंट नहीं होता। स्पीड है आपके पास, आपका डेटा की स्पीड कितनी है, यूएस में डेटा की स्पीड कितनी है, मैं अज्यूम करता हूँ दोनों सेम है, बट स्टिल डिफरेंट होगा ही होगा। एक रिक्वेस्ट 20 किलोमीटर जा रही है, एक 26,000 किलोमीटर जा रही है। तो उस केसेस के अंदर क्लाउड फ्रंट विल हेल्प यू कि जो इंडिया के यूजर्स हैं या जो बाहर के यूजर है जिनको ज्यादा दूर तक रिक्वेस्ट ट्रैवल करना होता है, वहां पे क्लाउड फ्रंट आपके लिए एक ऐसा टूल, ऐसा मैकेनिज्म प्रिपेयर करता है जिससे आपको भी ऐसा ही लगेगा कि वो जो डेटा सेंटर है वो आपके लिए भी जो ट्रैवल है वो कम रहेगा, सो दैट आपकी स्पीड इंक्रीज रहे। इलास्टिक कैशे अगेन डेटाबेस की ही सर्विसेज है, जहाँ पे हम अपने डेटाबेस की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। दिस हेल्प्स इन आरडीएस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है। लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर आई विल शो यू वन वेबसाइट, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर सेम ऐसी ही होगी जैसी रियल वर्ल्ड के अंदर आप अपने कस्टमर्स के लिए डिजाइन करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ। सो दिस विल बी आर थ्रू आउट दिस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस डे टू डे सिनेरियोज होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, थ्योरी तो है ही है, और रिज्यूमे और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। मेरे पास खुद का डेटा है वो शेयर करूंगा। AWS की खुद की अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको हेल्प करूंगा, सर्विस बाय सर्विस, एंड रिज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अभी तक एवरीथिंग इज क्लियर गाइस, कोई इशू? No, yes, sir. नो सर, ये ओके ओके, कहीं भी इशू हो यू कैन इंटरप्ट मी, वहीं पे मुझे रोक देना, आई लेट यू नो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ जी, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों में कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर, it's okay. ठीक है, Okay. फाइन फाइन फाइन, ये मिक्सअप ही रहेगा हमारा ना। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इंटरनेट, मींस जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपका डेटा सेंटर, डेटा सेंटर के अंदर क्या है? सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, हार्डवेयर है, डिवाइसेस जितने भी होते हैं आपके, नेटवर्क है, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट आईटी, ठीक है। एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ओवर इंटरनेट मैनेज करना शुरू कर देते हो, दैट बिकम्स योर क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट्स इट। क्लाउड का डिफरेंस यही है। पहले का जो मैंने दोनों एनवायरनमेंट के अंदर काम किया है, क्योंकि क्लाउड हमारे टाइम पे नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, ठीक है। जब मैं बाकी कंपनीज में काम करता था इन लिनक्स और समथिंग कहीं भी, तब क्लाउड नहीं थे, तब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का तरीका ही अलग था। अब बिल्कुल चेंज हो गया है, जॉब्स भी बहुत ज्यादा कट हो गई हैं क्लाउड के आने के बाद। उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। पहले जहाँ पे मेरे फ्लोर पे मान लो एक कस्टमर है जिसकी एक एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए 10 अलग अलग टीम्स होती थी। 10 टीमों के अंदर करीब करीब
6 8 या 10 बंदे होते थे, करीब 100 बंदे उस एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं, जिसके लिए कोई भी कंपनी उस कस्टमर से चार्ज कर रही है, पैसे कमा रही है। अब वही एप्लीकेशन मैनेजमेंट 100 से 10 बंदों पे आ गई है, या 20 आप मान सकते हो मैक्स, उससे ज्यादा बंदे नहीं है। तो 80 बंदे की जॉब फायर हो चुकी है ऑलरेडी, खत्म हो गई है मार्केट से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स। क्लाउड के अंदर वाई कंप्यूट, पूछते हैं लोग वाई क्लाउड, हर बंदा क्लाउड ही क्यों लर्न कर रहा है, चाहे वो 10 साल एक्सपीरियंस है, चाहे 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, चाहे वो स्टूडेंट है। ठीक है, बीटेक के अंदर भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके करिकुलम के अंदर सब ऐड हो गया, क्लाउड वगैरह ये वो सब पढ़ाने लग गए हैं। क्यों? क्लाउड इज फ्यूचर। और हर कंपनी क्लाउड की तरफ क्यों मूव कर रही है, चाहे वो बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है? क्योंकि मैनेजमेंट इजी है, डिप्लॉयमेंट इजी है, कम रिसोर्सेज की चाहिए जरूरत आपको, खर्चा कम है, राइट? ये सब रीजंस हैं। Cloud computing provides a variety of computing resources from servers to storage to enterprise email, security, backup, DR। बेसिकली होता क्या है, जो आपका खुद का डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एचसीएल में आपने काम किया, एचसीएल खुद के डेटा सेंटर्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं जिनके लिए वो काम करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं, उन्होंने सब कुछ अपना अंदर ही मैनेज किया हुआ है, सारे सर्वर्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, राइट? एप्लीकेशन है। सो वो सारी चीजें, मान लो वो एक बिग लेवल पे वो कस्टमर है, उसकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इतनी इतनी सारी चीजें चाहिए, ये एप्लीकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज अगर किसी क्लाउड पे होंगी तभी वो मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। सिंपल। एप्लीकेशन वाला बोलेगा यार मेरे को ये 4 चीजें चाहिए, वरना मैं आ ही नहीं सकता, फिर चाहे जितना मर्जी फायदा हो, सिंपल सी बात है, राइट? अब मैं आपको बोल दूं सिंगापुर आ जाओ, पैसे नहीं दूंगा, सिंपल, या कम दूंगा, तो आपको पता है कि जब तक सर्वाइवल ही नहीं होगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन को जो 4 चीजें चाहिए पीछे, जब तक वही वो क्लाउड प्रोवाइडर अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप कैसे जाओगे, राइट? सो क्लाउड के ऊपर ये सारी सर्विसेज आर अवेलेबल। तो अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तीनों बिग चैंप है इन मार्केट। ठीक है, किसी भी एरिया में आप देख लो, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर भी पब्लिक क्लाउड में यही 3 नेम्स है जो बिगेस्ट नेम है। तो इन तीनों ने इतने एम्पल अमाउंट ऑफ सर्विसेज लॉन्च की हैं कि किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, एवरीथिंग कैन बी होस्टेड ऑन अमेजोन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको किस पे जाना है वो आपको पर डिपेंड करता है। नेटफ्लिक्स रन ऑन AWS, नासा रन ऑन AWS। ठीक है, जितनी आप नेटफ्लिक्स पे आप देखो कितना ह्यूज कंटेंट है, एंड विजिटर्स देखो अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी एक फेसबुक की तरह ही है। अभी प्राइम वीडियो तो है ही खैर अमेजोन का, तो वो भी अमेजोन पर रन है। तो आप देखो एवरीथिंग कैन बी होस्टेड ऑन AWS। वो एक छोटी सी एप्लीकेशन भी हो सकती है, या नासा भी अपने कंप्यूटर्स मैनेज कर रहा है। देखो नासा के लिए AWS ने अलग से एक पूरा अवेलेबिलिटी जोन, एक डेटा सेंटर बनाया जहाँ पे सिर्फ नासा की ही एप्लीकेशन डिप्लॉयड है ड्यू टू सिक्योरिटी एंड ऑल। जो यूएस की सिक्योरिटीज है, ये व्हाइट हाउस है, ये सब एवरीथिंग रन्स ऑन AWS, एवरीथिंग। The cloud delivers a hosting environment that is immediate, flexible, scalable, secure and available। ठीक है, ये है रीजन everyone is moving towards cloud with saving corporate money, time and resources। सबको यही चाहिए कि इमीडिएट हो। मैं आपको बोल दूं एक काम यार मुझे अभी चाहिए 2 घंटे में, हर बंदा आपसे यही रिक्वेस्ट मांगेगा, भाई सबसे पहले मेरा काम कर, सबसे पहले ये कर, सबसे पहले वो कर। तुम फ्लेक्सिबल होने चाहिए, स्केलेबल होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, तुम अवेलेबल होना चाहिए। तुम वो कौन है? वो क्लाउड है। मस्त। तो अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको अपनी एक वेबसाइट होस्ट करनी है, लॉन्च करनी है, यू हैव ए प्लान, यू हैव ए प्रोजेक्ट, आपके पास कुछ भी है। ठीक है, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, यू हैव डेवलपर्स, यू हैव योर कोड जो भी आपको चलाना है जिससे आपकी वेबसाइट रन होगी ब्राउजर पे। ठीक है, तो मान लो अगर वो नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में आपको चलानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू नीड हार्डवेयर। जब तक आपके पास सर्वर नहीं होगा, वो एप्लीकेशन का कोड आप कैसे चलाओगे? ठीक है, वो सर्वर कहाँ से लेके आओगे? कहीं से भी आप लाओगे, दिल्ली से हो तो आप नेहरू प्लेस से लाओगे, या कहीं से भी लाओगे। मैं बेटा बाद में करूंगा, चल तू भाग यहाँ से जा। सर हाँ जी, स्केलेबल मींस? बताता हूँ। देखो इमीडिएट की बात करते हैं, तो आपको वो सर्वर खरीदना पड़ेगा पहले। खरीद के फिर यू नीड फिजिकल स्पेस। उसको कहाँ पे प्लेस करोगे? अपने घर के अंदर कहाँ करोगे? व्हाटएवर। तो फिजिकल स्पेस आपको देखना है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी आपको देखनी है, उसकी 24 आवर्स अवेलेबिलिटी आपको देखनी है, क्योंकि आपका सर्वर डाउन, आपकी एप्लीकेशन डाउन, आपकी वेबसाइट डाउन, सिंपल। उसको 24 आवर्स अप करने के लिए आपको पावर देखनी पड़ेगी, यूपीएस देखना पड़ेगा, उस पर आपको 24 आवर्स इंटरनेट रन करना पड़ेगा। मान लो आपने एयरटेल का ले लिया, कल को एयरटेल की वायर में प्रॉब्लम आ गई बाहर से, देन
प्रॉब्लम एयरटेल की है, नुकसान किसका हो रहा है? आपका। क्यों? सर्वर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देन यू नीड 2 3 4 इंटरनेट कनेक्शन, ताकि एक डाउन हो जाए तो दूसरा, दूसरा डाउन हो जाए तो तीसरा, राइट? ऐसे ही पावर सोल्यूशंस होते हैं, उसको कूलिंग देने के लिए आपको एयर कंडीशन देना पड़ेगा। सर्वर्स ऐसे ही होते हैं, सर्वर्स पे जब लोड बढ़ता है 24 आवर्स रन करते हैं, एंड एयर कंडीशन अगर नहीं हो, आपका सर्वर 1 मिनट में बंद हो जाएगा। आई हैव सीन दिस लाइव इन एयरटेल। एयरटेल भारती मेरा कस्टमर था व्हेन आई वाज वर्किंग इन नोकिया लास्ट ईयर, ठीक है। सो एक डेटा सेंटर के अंदर एसी में प्रॉब्लम आ गई, सारे रैक बंद, पूरा क्लाउड डाउन, हजारों वीएम्स बंद हो गई थी, और मतलब करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगी थी नोकिया पे कि भैया आपके डेटा सेंटर के अंदर एसी बंद कैसे हो गया, सारे सर्वर बंद हो गए। उसको अब करने में हमें 4 दिन लगे थे, 4 दिन कोई सोया नहीं था, या 4 आवर्स या 5 आवर्स ही सो रहे थे बस। ब्रिज कंटिन्यूसली ओपन था, लोग सो रहे हैं, 6 घंटे जग के फिर आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो इमीडिएट जब क्लाउड की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखनी नहीं। दिस ऑल कम्स अंडर Amazon रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सर्वर का फिजिकल स्पेस, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी, 24 आवर्स अप, इंटरनेट कनेक्शन, पावर, सब कुछ उसके अंडर में है। सो जो ये आपका इतना सारा काम लगा, आप गए सर्वर बाय किया, इंस्टॉल किया, ये किया, पावर, इंटरनेट, कूल, ये वो, आपको कुछ नहीं करना। नाउ आपको खाली जाना है, AWS पे लॉगिन करना है, अपना सर्वर क्रिएट करना है, एंड वेबसाइट लॉन्च करने देनी है। इट्स इमीडिएट। यही चीज अगर आप नॉन क्लाउड में करोगे, इट्स नॉट इमीडिएट, आपको ये सारा प्री वर्क करना ही पड़ेगा। देन यू विल स्टार्ट अपलोडिंग योर एप्लीकेशन। फ्लेक्सिबल की बात करूं, आपके पास सर्वर है, आपने घर में ही लगाया है, कहीं भी लगाया है, फिजिकल सर्वर है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज मैनेजिंग, ठीक है। आप वीकेंड पे कहीं बाहर गए, पीछे सर्वर में इशू आ गया, देन इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, आपको वो फिजिकली ठीक करना ही पड़ेगा। Amazon के केस में नो फ्लेक्सिबल, आपको खाली एक लैपटॉप चाहिए, बाहर घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, जहां मर्जी ले जाओ, यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन। क्यों? क्लाउड मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इंटरनेट। आप ओवर इंटरनेट AWS लॉग इन करोगे, कोई प्रॉब्लम आई है छोटी मोटी रिजॉल्व कर दोगे, एंड योर एप्लीकेशन विल बी रीस्टोर्ड। स्केलेबल होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। जैसे आपने अपना खुद का सर्वर लगाया, वेबसाइट लॉन्च हो गई, ठीक है, वेबसाइट लॉन्च हो गई, ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है, राइट? सब बंदे चाहते हैं ट्रैफिक बढ़े, मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा यूज लॉग इन करे, ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स आए, रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। उसके लिए क्या होगा? जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा, उस सर्वर की कोई कैपेसिटी है, इनिशियली आप लेके आए 8 CPU या 2 फिजिकल CPU वाला सर्वर जिसके अंदर 16 GB या 32 GB रैम है, ये इतना स्टोरेज लगा है, 100 GB का, ये लगा है, वो लगा है, ठीक है। बाद में बढ़ा तो उस सर्वर की हालत खराब हुई, क्योंकि मान लो उस सर्वर की कैपेसिटी है 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट लेने की, अभी आ रही है 150। देन सर्वर स्लो होगा, सर्वर स्लो होगा तो आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी, ये भी हो सकता है कि आपका सर्वर डाउन चला जाए, देयर इज पॉसिबिलिटी। और वो डाउन हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी। देन आपको अपने सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप उसके अंदर 32 से 64 GB रैम ले आए, 2 फिजिकल CPU से 4 ले आए, 100 GB से 1000 GB कर दी स्टोरेज, हो गया स्केल। अब आपका सर्वर मस्त चल रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे ही आपने अपने हार्डवेयर को अपग्रेड किया, सबसे पहली बात तो पैसा लगा, ठीक है। जैसे ही अपग्रेड किया, ट्रैफिक डाउन आ गया, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लो आपके ऑर्डर्स आ रहे थे इंडिया में, कहाँ से? बिहार में, अभी बिहार में बाढ़ आ गई है, देन डेफिनेटली आपके ऑर्डर्स कम होंगे ही होंगे। बाढ़ के टाइम पे ऑर्डर कौन करता है? वो अपनी जान बचा रहे होते हैं बेचारे सारे, राइट? जब सब पानी वानी निकल जाएगा तब देन आपका स्टॉक। पर इसमें नुकसान क्या हुआ आपका? आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, जैसे ही पैसा लगाया ऑर्डर्स कम हो गए। क्लाउड के केस में स्केलेबिलिटी ऑन द गो रहती है, वहां पे आपको कुछ भी बाय, यहाँ पे रहता है पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना है। तो एक ही सर्वर को, मान लो आपने अभी एक सर्वर बनाया 1 GB रैम का, 1 vCPU का, अभी आपको 2 GB रैम चाहिए, तो आपने फटाक से 1 मिनट लगेगा उस सर्वर को 2 GB कर दिया। तो जितनी देर के लिए आपने 1 GB पे चलाया, 1 GB का कॉस्ट पे करना है, जितनी देर के लिए 2 GB पे चला रहे हो, 2 GB का कॉस्ट पे कर रहे हो। फिर से मान लो बिहार में बाढ़ आ गई, आपको पता चल गया अभी ऑर्डर नहीं आएंगे 15 दिन या 1 महीना, तो 1 महीने के लिए फिर से उस सर्वर को आप 1 GB पे ला सकते हो। अपने हार्डवेयर के केस में आप उसको कम करके दिखाओ, कैसे करोगे? जो हार्डवेयर बाय कर लिया, काया कर लिया, उसको सेकंड हैंड सेल करोगे, कोई फायदा नहीं है। और मान लो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर से आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, देन यू अगेन नीड योर हार्डवेयर। यहाँ पे उस चीज को ऊपर नीचे कम ज्यादा करने के लिए यू इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। यहाँ पे हार्डली आपको 30 सेकंड लगेंगे, आपका 1 GB का सर्वर 32 GB का हो जाएगा, या 32 से 128 GB का हो जाएगा। Amazon के पास इतने एम्पल अमाउंट ऑफ इंस्टेंस टाइप्स हैं, सर्वर्स हैं, VMs हैं, आप
512 MB का रैम भी ले सकते हो सर्वर, और आप 2 टेराबाइट रैम का सर्वर भी ले सकते हो। तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपके घर में 20 AC लगे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा, आपके घर में फैन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा, सिंपल। ये यहाँ पे भी सेम वही मीटरिंग वाला फंडा है, जितना यूज करोगे उतना पे करना है। इन केस ऑफ पब्लिक क्लाउड सिक्योर तो है ही, अवेलेबल है ही, जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट मनी, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ सेव हो रहा है, राइट। क्लाउड सर्विस मॉडल्स की अगर बात करूं तो 3 चीजें आती हैं, IaaS, PaaS और SaaS, ठीक है। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर मैं बताता हूँ क्या आएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर आता है। पब्लिक क्लाउड के केस में आपको, इफ यू आर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, आपको हार्डवेयर तो मतलब IaaS लेयर तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी अपने कस्टमर्स को, क्योंकि हार्डवेयर तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर वो अपना सर्वर्स क्रिएट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे। प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज आती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ। लाइव एग्जांपल देता हूँ, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ। देखो ये है वो चीजें, ट्रेडिशनल IT की बात करें, IaaS, PaaS या SaaS की बात करें, तो जो लेयर है, एक सेकंड, ये जो लेयर्स आप देख रहे हो, ये सारी लेयर्स हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है। यही सारी लेयर्स इनमें भी है, IaaS में भी है, PaaS में भी है। कलर कोडिंग की हुई है, बताता हूँ। ट्रेडिशनल IT के अंदर मैंने बताया था, उस कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए 10 टीमें हैं, सबके अंदर 10-10 बंदे हैं। ये वो टीमें हैं सारी की सारी। एक नेटवर्क की टीम होती है, जहाँ पे नेटवर्क के प्रोफेशनल हायर अप होते हैं, CCNA, CCNP, CCIE वाले, जो नेटवर्क डिजाइन करते हैं। एक होते हैं स्टोरेज एडमिन गाइस, जहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट होती है। एक सर्वर हार्डवेयर टीम, जो डेटा सेंटर में बैठती है, कोई हार्डवेयर इशू आ जाए, सर्वर में फॉल्ट आ गया है ना, स्विच में आ गया, कुछ भी आ गया। वर्चुअलाइजेशन और सर्वर्स की जो टीम होती है, ये होती है आपकी विंडोज की टीम, लिनक्स की टीम, सोलारिस, AIX, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपके एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते हैं। और सर्वर हार्डवेयर पे यही चीजें, VMware हो गया, ये सारी टीम्स। तो मैं इन एरिया में काम करता था पहले, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन। इसके बाहर मैं कभी नहीं निकला। डेटाबेस वाले डेटाबेस का काम करते हैं, वो डेटाबेस ओरेकल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL हो सकता है, MySQL हो सकता है, पोस्टग्रेस हो सकता है, MariaDB हो सकता है, राइट। तो उसके प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको उनका बैकअप लेना आता है, रिस्टोर करते हैं, वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, डे टू डे टास्क करते हैं। सिक्योरिटी टीम होती है जो पूरा सिक्योरिटी, फायरवॉल टीम होती है जो पूरा का पूरा फायरवॉल देखती है। रन टाइम्स और एप्लीकेशन, ये आपके डेवलपर्स होते हैं जो आपकी कोड को डेवलप करते हैं, जावा यूज करते हैं, C++, ये सारे। तो ये सारे मिलके काम करते हैं, तब जाके ऑन द टॉप आपकी एप्लीकेशन काम करती है, रन करती है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन होता है। उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कल को एप्लीकेशन में कोई इशू आया तो सबसे पहले ये पता करते हैं, भाई कौन सी लेयर में इशू आया है, यहाँ पे इशू है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। डेटाबेस का इशू है तो डेटाबेस टीम एक्टिव हो जाएगी, एप्लीकेशन वाले फिर उनकी लेने शुरू कर देंगे, भैया तुम्हारी साइड से इशू, जल्दी रिजॉल्व करो इसको। हार्डवेयर में इशू है तो यहाँ पे इशू आएगा, ये तीनों इफेक्ट होंगे। स्टोरेज में इशू है तो स्टोरेज डाउन हो सकती है। नेटवर्क के स्विचेस में इशू आ गया, राउटर प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, राउट उड़ गए, कुछ भी हो गया, तो नेटवर्क टीम पिक्चर में आएगी। तो ये सारे काम करेंगे। क्लाउड आने के बाद क्या हुआ है, ये जितनी भी लेयर्स हैं सारी ऑटोमेटेड हो गई हैं। उसके बाद अब आपको बेसिक स्किल्स की नीड रहती है, एंड ये सारी लेयर्स आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। पहले जहां पे इन सारे लेयर्स के अलग अलग प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते थे, 10 लोग, अब केवल एक बंदा। अब इस कोर्स के अंदर भी देखो, हम नेटवर्क भी टच करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, हार्डवेयर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वर्चुअलाइजेशन हम देखेंगे, सर्वर्स भी इसी का पार्ट है, डेटाबेस हम देखेंगे, सिक्योरिटी हम देखेंगे, एप्लीकेशन का कोड, डेवलपर्स अलग होते हैं आज भी, बट स्टिल इफ यू वांट, हम थोड़ा बहुत एप्लीकेशन कोड भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक ही बंदा ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है। IaaS की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, क्लाउड की बात करें, ट्रेडिशनल था पुराने वाला, अब आ गया क्लाउड, जिसके अंदर 3 लेयर, IaaS, PaaS और SaaS। IaaS का देखो जो ग्रे एरिया है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेजोन का, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। यानी कि ये 4 चीजें नीचे की कौन मैनेज करेगा, अमेजोन, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो सारा कंप्लीटली उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली क्लाउड क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, जहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की है, कुछ आपकी है। तो अगर आप IaaS लेयर में जाते हो तो ये सारी चीजें फिर आपको मैनेज करनी है। सर्वर कौन सा लोगे, लिनक्स लोगे, उबुंटू लोगे, रेड हैट लोगे, विंडोज लोगे, क्या लोगे, विंडोज में कौन सा सर्वर लोगे, 2003 लोगे, 9 लोगे, 12 लोगे, 18 लोगे, 22 लोगे, वो सारा आपका काम है।
डेटाबेसेस, कौन सा डेटाबेस चूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल लेना है, ओरेकल लेना है, माईसीक्वल लेना है, क्या लेना है, इट्स योर चॉइस। आपको पता होना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा डेटाबेस चाहिए, उसकी सिक्योरिटी आप मैनेज करोगे, एप्लीकेशन का कोड आप मैनेज करोगे, या तो आप खुद लिखोगे या आप कोई डेवलपर हायर करोगे। जब पैस की बात करते हैं तो ये रन टाइम तक सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon की रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन का कोड चाहिए। Amazon के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो पैस में आती हैं, जहां पे आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन का कोड चाहिए, बाकी सारी चीजें Amazon ही मैनेज करेगा आपके बिहाफ पे। और SaaS के अंदर देखो, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर पैकेज इस SaaS, जहां पे आपको कुछ भी मैनेज करने का नहीं करना। एग्जांपल देता हूँ, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस, वो क्या है, वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर स्टैक है। पैसा कैसे कमाते हैं, आप सब्सक्रिप्शन करते हो, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आप देखते हो। मैनेज कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑन डिमांड वीडियो है, जो मर्जी वीडियो देखो, खत्म। सैस की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है मार्केट के अंदर, बट उसके लिए आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे ही आ सकते हो, आप जाओ इंटरव्यू देने की, भैया मुझे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो आप क्लाउड के अंदर, और आपको सैस में बैठा दे वो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे आपको मोर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, डीपर। EC2 की बात करता हूँ, EC2 इज वेरी वेरी कॉमन सर्विस, जहाँ पे ये सर्वर लेयर पे काम, हम पूरे कोर्स के अंदर EC2 पे काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल होगा मेरे को सबसे पहले सर्वर तो बना के आपको खड़ा करना ही पड़ेगा। वो EC2 ऐसी है, आप पूरा जन्म लगे रहो, EC2 कभी खत्म नहीं होगा, इट्स साइंस, वो पूरा साइंस बनाया है इन्होंने। सो हम स्टार्टिंग लेवल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, आप जो उसके नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन है वहां पे आप देखोगे EC2 के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो फिर आप वहां पे जाके कवर करोगे। तो स्लोली स्लोली ऐसे करके इंक्रीज करते हो अपने स्किल्स को, राइट। हर सर्विस यहाँ पे एक साइंस है। और Amazon की बात करें तो मोर देन 400 सर्विसेज दे हैव लॉन्च्ड, ठीक है। तो अगर AWS का आपको चैंप बनना है तो वो सारे सर्विसेज के बारे में एटलीस्ट, अगर एडवांस भी नहीं तो बेसिक या इंटरमीडिएट स्किल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स की, ठीक है। मॉडल्स हमारे रहते हैं पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, 4 तरीके के क्लाउड हैं आपके। मैं अभी प्राइवेट क्लाउड में काम करता हूँ। पब्लिक वो होता है जो पब्लिक के लिए ओपन रहता है, जाओ रजिस्टर करो, लॉगिन करो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको पे करना है उसका। जितना स्पेस, जितना स्टोरेज आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे, उसको यूज करके आपने जो भी सर्वर बनाया, उसके लिए आपको मंथली रेंटल पे करना पड़ेगा, जितना आप यूज करोगे। प्राइवेट के अंदर देयर इज नो रेंट। प्राइवेट होता है अपना खुद का, जहां पे बाहर का कोई भी बंदा आके रजिस्टर नहीं कर सकता, जैसे मैं करता हूँ। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक क्लाउड पे कभी भी मूव नहीं करेंगे। पब्लिक क्लाउड के एडवांटेजेस हैं जो हमने देखे, इमीडिएट है, ये है, वो है। डिसएडवांटेज क्या है, डेटा लॉस। आप गूगल ड्राइव पे अपनी आईडीज, अपनी मार्कशीट, अपना डेटा अपलोड करते हो, ठीक है। रीजन इजी है, फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है, कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन से खोल लिया, एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर लिया, प्रिंट दे दिया। पहले पेन ड्राइव लेके घूमते थे लोग, राइट। नुकसान क्या है, आप उसको कहाँ अपलोड कर रहे हो, गूगल के डेटा सेंटर में। आप अपने डेटा को कहाँ सेव कर रहे हो, गूगल की किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रहे हो। बैकएंड पे वो उसका कॉपी कर सकता है, डेटा लॉस कर सकता है आपका, मतलब चोरी कर सकता है, थेफ्ट, उसको सेल कर सकता है। चाइना की सारी कंपनीज यही करती हैं। अलीबाबा क्लाउड को आप कंपेयर कर सकते हो प्राइसिंग में, कंपेयर टू AWS, एज्योर या फिर गूगल। अलीबाबा इतने सस्ते प्राइसिंग देगा आपको, बट बैकएंड पे क्या करेगा, आप कुछ भी अपलोड कर दो, कोई भी सर्वर चला दो, आपका डेटा पीछे से चुराएगा, सेल करके पैसे कमा लेगा। दिस इज अलीबाबा, दिस इज चाइना। प्राइवेट के अंदर बैंक्स विल नेवर गो टू पब्लिक, चाहे उनका खर्चा जितना मर्जी आए। प्राइवेट के अंदर आपको अपना खुद का डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर उस पूरे डेटा सेंटर को क्लाउड पे बनाना पड़ेगा, एंड देन क्लाउड के थ्रू उसको मैनेज करना पड़ेगा। सारे बैंक्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो सारी की सारी प्राइवेट पे चलती है। मैं भी यहाँ पे टेलीकॉम में हूँ। पहले मैं एयरटेल करता था, एयरटेल का अपने खुद के डेटा सेंटर है, खुद के क्लाउड है, हम उनका हार्डवेयर भी मैनेज करते थे, सॉफ्टवेयर भी मैनेज करते थे। आप पब्लिक के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर मैनेज करोगे, हार्डवेयर आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में प्राइवेट के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा। कल को हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, मेरा काम है, नवीन रिजॉल्व करो। सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, हाँ भाई देख, राइट। सो प्राइवेट इज ऑल अबाउट योर, जहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा नहीं कर सकता, इट्स कंप्लीटली प्राइवेट, जहाँ पे कंपनी अपने खुद के ही सर्वर्स बनाएगी, दैट्स इट। हाइब्रिड क्लाउड होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड यूज कर रही है,
या दो अलग अलग पब्लिक क्लाउड यूज कर रही हैं। इट्स हाइब्रिड। आजकल ये हाइब्रिड मॉडल बहुत चल रहा है। कम्युनिटी क्लाउड, जहाँ पे एक नेटवर्क है अलग अलग कंपनीज का, वो एक कॉमन डेटा सेंटर यूज करते हैं और वो कॉमन डेटा सेंटर आपका क्लाउड पे है, देन इट बिकम्स कम्युनिटी क्लाउड। जैसे नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, यूरोप की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, सारे हॉस्पिटल एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी पेशेंट आईडी बन जाएगी, उसके बाद आप बीमार हो गए, कौन से डॉक्टर ने कंसल्ट किया, क्या दवाई दी, क्या दिया, ये दिया, वो दिया, वो सब आपका डेटाबेस के अंदर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, सेम हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर, वहां पे आपको जाके सिर्फ अपनी पेशेंट आईडी दिखानी है, उसको सारा पता चल जाएगा, इस दिन आप बीमार हुए थे, ये डॉक्टर था, उसने ये दवाई दी थी, ये आपका सिम्टम थे, ये था, वो था। क्यों पता चला? बिकॉज दे बोथ हॉस्पिटल्स आर कनेक्टेड बैकएंड पे विद ए कॉमन क्लाउड डेटा सेंटर। इट बिकम्स योर कम्युनिटी क्लाउड। स्कूल्स का नेटवर्क भी हो सकता है ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से। क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म्स है कुछ जो आपको थ्रू आउट क्लाउड, या आप अगर आप अमेजोन की बात भी ना करो, इफ यू गो विद जीसीपी, एज्योर, वीएमवेयर, किसी भी क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड में जाओ, ये टर्म सेम रहेंगे। इलास्टिसिटी, हमारा इलास्टिक जो आपके अंडर गारमेंट में होती है, उसका खास बात क्या है? वो ओरिजिनल शेप में है, जैसे ही आपने पहनी वो एक्सपैंड हो जाएगी, जैसे ही उतारोगे वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कि जब आपके सर्वर्स को ज्यादा, जब आपके एप्लीकेशन को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो इलास्टिसिटी के थ्रू आपके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और जैसे ही बंद हो जाएगी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। परफेक्ट सोल्यूशन। पे एज यू गो, जितना यूज करोगे उतना पे करना है। चार्ज बैक, और चार्ज बैक होता है किसी चीज का चार्ज करना, जैसे मीटर है आपके, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग यूनिट क्या है, पर किलोवाट, या जितनी भी कितनी यूनिट है, या ना, हम ये बातें करते रहते हैं, यहाँ पे ऐसी है। सर्वर्स की चार्जिंग यूनिट क्या रहेगी हमारी? पर सेकंड, कि आपने किसी सर्वर को कितने सेकंड्स के लिए अप करके उस पर काम किया। स्टोरेज, पर केबी, कितना स्टोरेज आपने यूज किया। नेटवर्क की बात करें तो वहां पे बैंडविड्थ देखेंगे, कितना बैंडविड्थ आपने यूज किया, अपलोड में कितना किया, डाउनलोड में, बोथ वे ट्रैफिक आपका चार्ज होता है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही होता है आपका। मल्टी टेनेंसी क्या होती है? जहां पे एक सर्वर पे मल्टीपल कस्टमर्स के सर्वर रन करें, दिस कॉल्ड मल्टी टेनेंसी। या घर की अगर बात करें, जो एक रेंट आउट पे आपने दिया, पीजी होता है, पीजी के अंदर एक रूम में 3 बच्चे हैं, 3 बंदे हैं जो रह रहे हैं, 3 अलग अलग बेड लगे हुए हैं एक रूम के अंदर, दिस कॉल्ड मल्टी टेनेंसी। तीनों बंदे अपना अपना रेंट पे कर रहे हैं, बट रूम एक ही यूज कर रहे हैं वो, दैट्स कॉल्ड हेयर। पब्लिक क्लाउड के अंदर हमेशा आपको मल्टी टेनेंसी दिखेगी, प्राइवेट के अंदर कभी मल्टी टेनेंसी दिखेगी ही नहीं। क्यों? एक ही कस्टमर है, जो ऑनर है उसी के वीएम्स आएंगे, किसी दूसरे को एक्सेस है ही नहीं। क्लाउड बर्स्टिंग बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड के अंदर यूज हो, थोड़ा सा एडवांस चीजें आई हैं, ठीक है, जहां पे बंदा प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्लाउड यूज कर रहा है। एचसीएल है। हार्डवेयर जब आप एक्सपेंड करते हो, इट नीड्स कॉस्ट, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वहां पे लगता है, क्योंकि हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज आपके आते हैं डेटा सेंटर के, इज वेरी वेरी कॉस्टली। आप 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव अपने लैपटॉप के लिए लेके आओ, 5-6 हज़ार की मिल जाएगी आपको। वही 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव जो आपके डेटा सेंटर में यूज होती है, वो आपको मिलेगी कम से कम भी 1 लाख रुपए की। स्टोरेज स्पेस सेम है, 1 टेराबाइट, यहाँ भी वहां भी, बट वहां पे इतनी कॉस्टली आती है स्टोरेज। क्यों? उसके अंदर और भी फीचर्स होते हैं, डिजाइन अलग होता है, उसका रैक अलग होता है जहाँ पे वो इंस्टॉल होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो वो अलग ही लेवल है, तो वहां पे चीजें बाय। अब क्लाउड, अब एचसीएल एक लेवल पे आके बोलेगा यार मैं अब हार्डवेयर में और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, गो फॉर पब्लिक। तो वो बोलेगा ठीक है, मान लो आपके डेटा सेंटर के अंदर 20 एप्लीकेशन चल रही हैं, अब हो गई 30, और आपके अपने खुद के डेटा सेंटर की कैपेसिटी 20 की है, 10 के लिए आप क्या करोगे? या तो अपना हार्डवेयर अपना एक्सपेंड करोगे, डेटा सेंटर को एक्सपेंड करोगे, या बोलेगा ठीक है ये बाकी की 10 एप्लीकेशन आप पब्लिक पे चलाओ, अमेजोन पे। आप हाइब्रिड क्लाउड मॉडल तैयार करो, जिसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा बिटवीन आर क्लाउड, आर डेटा सेंटर टू अमेजोन। दिस इज पॉसिबल, बहुत सारी कंपनी ऐसे ही करती हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, वीपीएन टनल्स आपकी बन जाएंगी, सिक्योर आपका डेटा रहेगा, फास्ट आपका डेटा ट्रांसफर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा आप अपने ही डेटा सेंटर में वो 20 एप्लीकेशन रन करो, बट चल कहाँ रही है? अमेजोन के अंदर, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन जब आ जाए कि आपका हार्डवेयर बर्स्ट हो जाए, भाई और कैपेसिटी नहीं है, तो आप अपने एप्लीकेशन को मूव कर दो, या कुछ इस तरीके का सिनेरियो डिजाइन करो कि आप इस तरीके के सिनेरियो में आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी आपके डेटा सेंटर से अमेजोन के डेटा सेंटर में, और वहां पे जाके चलना शुरू हो जाएंगी। और अमेजोन के पास रिसोर्सेज की कमी है नहीं, जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा। बस एक ही बात है, जितना यूज करोगे उतना पे करना है, सिंपल।
तो उसके लिए वो रेंट पे करना फॉर सम टाइम HCL के लिए इज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू वो पूरे रैक्स बाय करेगा। एक रैक 2 करोड़ रुपए का आता है, उसको 10 रैक चाहिए, 20 करोड़ रुपए लग गए। वहीं पे उस एप्लीकेशन को अगर वो कभी कभी यूज कर रहा है मंथली, मान लो उसको 50,000 का बिल भी आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक क्लाउड कि एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स पब्लिक क्लाउड। जहां पे आपको 20 करोड़ रुपए लग रहे थे, 50,000 में आपका काम हो रहा है। एंड 20 करोड़ रुपए आपको इनिशियली, उसको बोलते हैं अपफ्रंट कॉस्ट, यानी कि कोई भी चीज को डिप्लॉय करने से पहले की कॉस्ट। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा एप्लीकेशन कैसे रन करोगे? हार्डवेयर कैसे आएगा? पैसा लगेगा, इंस्टॉल करोगे, 10 लोग लगेंगे उसके ऊपर, उसको रेडी करेंगे, उसके ऊपर क्लाउड इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आप उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे। उससे पहले का जितना कॉस्ट आया, आप देखो कितना ह्यूज कॉस्ट आया। अमेजोन के अंदर क्या है, आप पहले चला लो, 1 महीने बाद रेंट पे कर देना, कितना अच्छा है देखो, राइट? ऑर्केस्ट्रेशन समथिंग लाइक ऑटोमेशन, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन की ही है। क्लाउड इज नथिंग बट ऑटोमेशन। इन्होंने हर लेयर को ऑटोमेट किया है, दैट्स इट। उसके बाद क्लाउड बेसिक्स इज खत्म, अभी इट्स ऑल अबाउट AWS। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम AWS से शुरू करेंगे, जहाँ पे लेट यू नो कि व्हाट इज AWS, कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मॉडल्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने क्या क्या बनाया है, कहाँ कहाँ बनाया है, क्या उसकी प्राइसिंग है, कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं उस पर, कैसे फिर हम उस पर लॉग इन करेंगे, एंड कैसे हाउ वी विल स्टार्ट डिप्लॉइंग योर एप्लीकेशन। उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, दैट्स इट। आज का इतना ही है। जस्ट लेट मी नो, इज इट फाइन? कोई इशू अभी नो तक सर। समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, एनीथिंग? कोई भी आपके क्वेश्चंस हो आपकी मूवमेंट को लेके, क्लाउड करियर को स्टार्ट करने में, व्हाटएवर यू कैन आस्क, नो इशू। सर अभी जैसे इसमें सर्वर्स मैनेज करते हैं, ये वेबवेयर के थ्रू ही करते हैं, कैसे करते हैं नहीं, इसका अपना खुद का इंटरफेस है ना, उस पर हम यूज करेंगे उसको। सर? बैकएंड पे नो डाउट जो HVM है, VMware की टेक्नोलॉजीज ये बैकएंड पे यूज करता है, बट आपको Amazon का अपना खुद का एक अलग से प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसी के थ्रू आप क्रिएट करोगे, उसी के थ्रू आप बनाओगे, उसको लॉग इन करोगे, यूज करोगे। ओके। आप इस और पे जो ये कुछ कर एमएनसीज सकते हो। होते हैं सर, नॉर्मली ये प्राइवेट पे रन करती हैं या पब्लिक? जैसे आप एक्सेल की बात करो, ये ऐसे हो गई, तो ये प्राइवेट नहीं करेंगे सर? पब्लिक रिस्क अगर तो ये नहीं प्राइवेट रहेगा? कर देंगे तो फिर आपको एक्सेस ही नहीं होगा। आप AWS की वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है? मान लो आपने हम्म एक वेबसाइट बनाई, आप उसको प्राइवेटली लॉन्च करो, तो उस वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ आप ही देख पाओगे, पूरी दुनिया नहीं देख पाएगी। जो HCL के हम्म क्लाउड है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ वही बंदा लॉग इन कर पाएगा, देख पाएगा, जो HCL के नेटवर्क में आएगा। HCL के नेटवर्क के बाहर का बंदा उस क्लाउड को कभी नहीं देख पाएगा। वो हमेशा प्राइवेट IP पे लॉग इन करते हैं, यूज करते हैं। और पब्लिक हमेशा पब्लिक पे चलता है। पब्लिक क्लाउड वो होता है पब्लिक के लिए, कि पब्लिक आए, भाई हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास ये सर्विसेज है, इनको यूज करो और आप अपना सर्वर क्रिएट कर लो। बट उस सर्वर के ऑनर आप ही रहोगे, पूरा कंट्रोल आपने दिया हो, AWS ने आपको दिया है उस सर्वर को मैनेज करने का। वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा आपके बीच में, आपके सर्वर के बीच में। इट्स लाइक आपको लगेगा कि वो आपका ही सर्वर है, आपके ही किसी हार्डवेयर पे लगा हुआ है, बस आप उसको हम्म मंथली रेंटल के रूप में उसको पे करोगे आप। That's it। ओके। इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स हैं, स्टोरेज है, नेटवर्क है, सर्वर्स हैं, और हजार चीजें हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। जब आप रजिस्टर करते हो AWS अकाउंट पे, यू आर द ओनर ऑफ योर अकाउंट। आप किसी भी सर्विस पे कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कंप्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है आपके पास। यू विल बी द रूट। द ओनली थिंग इज मनी। जो रिसोर्सेज आप क्रिएट करोगे उसका आपको पे करना है। इस कोर्स की बात करूं तो Amazon ने फ्री टियर लॉन्च किया है, ठीक है? जिस डेट को आप अपना AWS अकाउंट रजिस्टर करोगे, उसके बाद 1 साल तक कुछ रिसोर्सेज आप फ्री में यूज कर सकते हो, जिसका आपको बिल नहीं आएगा। तो हमारा ये जो कोर्स है, उसके जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, वो हम ट्राई करेंगे कि फ्री में कंप्लीट करें। आई विल मेक श्योर कि आपको कोई चार्ज नहीं आएगा उसका। अगर आएगा किसी मंथ में, एक आध मंथ में मान लो आ भी गया, तो इट विल बी लाइक 2 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए, दैट्स इट। उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा आपका। तो दिस इज गुड, अदरवाइज वी हैव टू पे। तो मैं जितने प्रैक्टिकल करूंगा मेरा ही बिल नहीं आएगा। जो रिसोर्सेज मैं बोलूंगा, जिस टाइप का रिसोर्स बोलूंगा, आपको वही क्रिएट करना है, दैट्स इट। दूसरा क्रिएट करोगे, इमीडिएटली आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा।
एंड AWS अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स उसके साथ मैच करने ही पड़ेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। बट वो ऑटोमेटेड डिडक्ट नहीं करते, आपको बिल मैन्युअली पे करना पड़ेगा। तो इंडियंस क्या करते हैं, मान लो ज्यादा बिल आ भी गया, स्टूडेंट हो, टेस्ट कर रहे हो, अकाउंट क्लोज कर दो, डीएक्टिवेट, खत्म। वो करते रहेंगे आपको मेल, बिल पे करो, बिल पे करो, कोई नहीं करता, राइट। तो आप क्या करोगे, नई आईडी बनाओ, नया फोन नंबर लो, दूसरा अकाउंट रजिस्टर कर लो, फिर से 1 साल के लिए रजिस्टर हो गए फ्री टियर में, वहां पे यूज करना शुरू कर लो। बट इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमको अपना बिल बचाना, नहीं। मेरा आपको काम है एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आपको ये लर्न होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना है। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। फाइन धीरज, मनदीप, Yes, कोई sir. इशू? Yes, sir. ओके No, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हमारा डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। सो विल बी मोर ऑन प्रैक्टिकल्स। थ्योरी जरूर रहेगी, नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इनिशियल है। तो आपको सबसे पहले तो इनकी जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो लर्न करना बहुत जरूरी है। बट थ्रू आउट द कोर्स वो टर्म्स, वो फील्ड्स हम डेली अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपकी वो हैंडी हो जाएंगी, कोई बड़ी डील नहीं है। Okay. ठीक है जी, क्लास क्लोज करते Yes, हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम गौरव से टच में रहते हैं, ठीक है। When will it happen? Okay. Okay, thank you guys. Thank you. Bye. Thank you. Bye.